Hello friends, welcome back. In arithmetic reasoning, we have already gone through simplification and average. Now let's go to ratio and proportion. Once again, one of the important topics हम इसको मान सकते हैं. There will be 100% question asked on ratio and proportion. First of all, try to understand important concepts related to ratio and proportion. So normally ratio is written like this, 2:3. So it means actually 2 upon 3. It means actually 2 upon 3. 2 is called as dividend and 3 is called as a divisor. 2 is called as dividend and 3 is called as divisor. So this is the first term. This is the second term. The first term is called as antecedent. First term is called as antecedent and second term is called as consequent. Second term is called as consequent because in the question, if they will ask you find out the consequent means second term. If they ask you to find out the antecedent, इसका मतलब first term. Clear है? चलो. Third proportion. So what is the third proportion? Try to understand. Suppose 2:3. 2:3. So third proportion will be 3:x. So always keep in mind only these proportions will be given 2:3. You have to assume as a first. So 2:3 means 3:x. So इसका मतलब A:B, इसका मतलब B:x. हमें सिर्फ निकालना पड़ेगा x क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अगली वाली टर्म है. दिस इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शन. क्लियर है? चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं. रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 7:5. रेशियो क्या है दो नंबर्स का? 7:5. एग्री? इफ द कॉन्सिक्वेंट इज 35. कॉन्सिक्वेंट क्या देके रखा है आपको? कॉन्सिक्वेंट मीन्स दिस इज. एग्री है? सो 7/5 x/35. कोई प्रॉब्लम? x/35. Always there is a cross multiplication. So 7 multiplied by 35 is equal to 5x. So x is equal to 735 upon 5. 5 sevens are 35. 7 sevens are 49. Answer is 49. Clear? Next question. Ratio between two numbers is 11:13. पहले नंबर का क्या दिया है? 11:13. If the antecedent is 121, what is the consequent? x की वैल्यू पूछी. एग्री है? हाँ. सो किस तरह से आंसर निकालना है? डोंट से नो, अभी शॉर्टकट मत करो. सर 11 का स्क्वायर 121 है, सो 13 का स्क्वायर 169. 169 इज नॉट द आंसर. पहले ही बता देता हूं आंसर कैसे निकालना है. सिंपल तरीका है. सो हमें ऑलरेडी पता है 11/13 is equal to 121 upon x. Cross multiplication. 11x is equal to 121 multiplied by 13. So x is equal to 121 multiplied by 13 upon 11. Agree? So 11 ones are 11. 11 ones are 11. So x is equal to 11 multiplied by 13. So 11 multiplied by 13 is 143. Clear? One more example. Answer is 143, not a 169. पहले मैंने बता दिया था. Ratio 65:80 reduce. Okay. 65 और 80 दोनों 5 के टेबल में आते. Yes. 5 1s are 5. एक बच्चा 5 3s are 15. 5 1s are 5. 3 बच्चे 5 6 are 30. 13 16. 13:16. ऑलरेडी आंसर इज गिवन. सो आंसर हमारा आ गया 13:16. क्लियर है? नेक्स्ट क्या पूछा? 1/15
is to 1/25. So 1/15 multiplied by 25/1. 1 चला गया, 5 5 जा, 5 3 जा, सो रेशियो आना चाहिए 5:3, नॉट 3:5, रेशियो आएगा 5:3. क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 5, रेशियो रेड्यूस 2:13:3:12. सबसे पहले रेशियो कन्वर्ट करना हम सीख लेते हैं. कैसे करते हैं? multiplication plus this because this is divisor, this is remainder, this is the quotient. So 3 multiplied by 2 6, 6 plus 1 7/3. क्लियर है? 3 2 जा 6, फिर से 7/2. So 7/3 multiplied by 2/7, 7 7 cancel, 2:3. 2:3. Answer is 2:3. Simplest. Nothing is complicated there. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 125 ml and 2 liter? This is given in milliliter. This is given in liter. So we already know that 1000 ml is equal to 1 liter. Agree? So 2 liter का मतलब हुआ 2000 ml. अभी क्या पूछा है? What is ratio between 125 ml and 2 liter? 125 ml and 2 liter दोनों को हमने ml में कन्वर्ट कर लिया. दोनों को ml में हमने कन्वर्ट कर लिया. क्लियर है? अभी करो रेड्यूस. 25 का टेबल ले सकते हैं. यस. 25 5 जा 125, 25 8 जा, so 5/80. एग्री है? 5/80 और रेड्यूस करो. 5 1 जा 5, 5 16 80. सो 1:16 रेशियो है. 1:16 रेशियो है. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. टू नंबर्स. ओके, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 15 hours and 1 day? 15 hours and 1 day. So 1 day is equal to 24 hours. Am I right? 1 day is equal to 25 hours. So 15/24. दोनों 3 के टेबल में. यस. 3 5 जा 3 8 जा 5:8. पहले ऑप्शन है 5:8. रेड्यूस कर दिया हमने, बाकी कुछ भी नहीं. डेज कन्वर्टेड इनटू आवर्स बिकॉज पहला आर दिया है. क्लियर है? Two numbers are in the ratio 3:4. Two numbers are in the ratio 3:4. If the second number is 48, if the second number is 48, what is the first number? Cross multiplication. 3 multiplied by 48 is equal to 4x. So x is equal to 3 multiplied by 48 upon 4. 4 1s are 4, 4 2s are 12, 3s are 36. Answer is 36. क्लियर? सबसे आसान चैप्टर है रेशियो और प्रोपोर्शन का. नाइन्थ एग्जाम्पल. 27x is equal to 6384. Cross multiplication. 27 multiplied by 84 is equal to 63x. So x is equal to 27 multiplied by 84 upon 63. So 21 का टेबल आपको आता है. यस. 21 3 जा 21 4 जा 3 9 जा 9 plus 4 फिर से 36. आंसर इज वंस अगेन 36. सो ये मैंने मल्टीप्लीकेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि डिवीजन मुझे आसान हो जाएगा बिकॉज दे आर इन द सेम टेबल. दैट इज द रीजन. आंसर इज वंस अगेन 36. क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करके देखते हैं. 960 distributed between Ram and Rita in the ratio 3:5. Then Rita's share. So सबसे पहले रेशियो देखो 3:5. राम और रीता 3:5. इसका मतलब 3 + 5 8. सो राम का है 3,
अपॉन 8, रीता का है 5 अपॉन 8, एग्री। उन्होंने पूछा है रीता का शेयर, सो 960 में रीता का शेयर है हमारा 5 8 सर, 8 1 जा 8, 1 2 जा, सो 120, 120 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 5 जा 60 प्लस आ गया एक 600, सो आंसर इज रुपीज 600। क्लियर है। सो रीता का शेयर है 600। सो आप बोलोगे सर बचा हुआ शेयर 960 में से 300 निकाल लो, 360 शेयर जो है वो राम का होगा। इस तरीके से निकाल के देखो, 960 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 8, 120, 12 3 जा 36, इस तरह से निकालो या तो माइनस करके निकालो, वन एंड द सेम। सो राम का शेयर निकलेगा 360 और रीता का शेयर है 600। हमें रीता का पूछा है, दैट्स व्हाई आंसर इज 600। क्लियर है। चलो शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 11। सबसे पहले इसको ए और बी, ए एंड बी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2। सो इनका रेशो इक्वल नहीं है, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, नीचे 6 आ गया तो इक्वल हो जाएगा। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 अपॉन 6, सो 8 प्लस 9 17 अपॉन 6, 17 अपॉन 6। क्लियर है। सो इसका मतलब इसका है 8 अपॉन 6, इसका है 9 अपॉन 6। सो रेशो नया हमने एस्टेब्लिश कर दिया 8:9। सो इसमें से ए का शेयर कितना हुआ, 8 प्लस 9 17, सो 8 अपॉन 17। ए का रेशियो है 8 अपॉन 17। एग्री है कि ए का रेशियो हमने निकाला 8 अपॉन 17। सो 1020 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 17। सो 17 के टेबल में आ रहा है, यस 7 के टेबल में आ रहा है 6, 17 6 जा 102, 8 6 जा कितना 48, मतलब 480, आंसर इज रुपीज 480। क्लियर है। सो ए का इस तरह से हमने अमाउंट निकाल ली। लास्ट क्वेश्चन, एलॉय कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर। एलॉय में क्या क्या है, जिंक है और कॉपर है, इन द रेशो 3:4। हाउ मच कॉपर इज देयर इन द 28 kg एलॉय। अगर पूरा एलॉय आपका 28 है, सो इसका मतलब दोनों मिलके जिंक कितना हो गया, यस 3/7, 4/7। उन्होंने क्या पूछा, हाउ मच कॉपर इज देयर, हाउ मच कॉपर इज देयर। सो 28 kg में से हमें कॉपर निकालना है, 7 4 जा 28, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, सो 16 kg कॉपर है। इसमें कितना है, 16 kg कॉपर है। सो ये रहा हमारा रेशो और प्रोपोर्शन का पार्ट। सिंपलेस्ट है, शॉर्टेस्ट चैप्टर है। आपको रेशो और प्रोपोर्शन ध्यान में आ गया, हाउ टू कैलकुलेट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।